So let's begin with the Arabic one. So the we have four papers in this, and and these four papers, they are actually the four skills. You know, the four skills: listening, reading, speaking, and writing. You know, so each skills वो उससे it is specific to the specific paper. Yeah, and these four skills, they are not specific to the Arabic. So we need these skills in learning any language actually. you know so in English also, in Urdu also. So the four skills are they are mandatory, they are the first step. Okay. So लेकिन यहाँ हमारा जो है फोकस वो अपने एरियाज़ के ऊपर होगा कि what are the areas in which we have to use these skills. ठीक है ना, जहाँ हमें इन स्किल्स को यूज़ करना होगा. तो वो जो कैटेगरीज हम उनको कह सकते हैं या एरियाज़ हम उनको कह सकते हैं, दे आर दे मेंशन्ड इन द सिलेबस. आई थिंक you have gone through this, so let's do it and also set the strategy. What is the strategy, what is our strategy going to be in covering all these aspects. Okay. So yeah, so first of all, हमें जो फर्स्ट कैटेगरी जो होगी वो एवरीडे एक्टिविटीज़ से रिलेट करेगी. एवरीडे डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज़, time expressions like he mentioned, and food, drinks, and and health also, human body related things. So vocabulary related related to these aspects, we are going to, inshallah, we acquire proficiency and vocabulary in these things. And the second thing is personal life and social life. Personal and social life. So this includes family, friends, and different things that we need in communication. So whether you are in the home, or you in living room, kitchen, bedroom, so colors, all the clothings, all these things. And then we have the surroundings, environment around us, the world around us. So it involves the people, places, and the nature, weather. So all these things, so they are very relevant things. So we won't focus on the things that are irrelevant actually, right? So yeah, so we don't waste our time. That is the main thing. And also we focus on the category on the world also, in general, the world, education. And before this, the work and the education, ये भी एक स्पेसिफिक जो है, ये एक फील्ड है जिसके अंदर हमें अपनी वोकेबलरी को, अपनी प्रोफिशेंसी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होता है. एंड द वर्ल्ड ऑल्सो, द कंट्रीज, द नेशनैलिटी, जनरल नॉलेज जी के, या सो द पेपर वन, इट विल बी अबाउट लिसनिंग. या अब देखो, इन फोर स्किल्स को अगर आप एनालाइज करें ना, तो दे आर ओनली टू स्किल्स, two primary and basic skills, that are listening and reading. Listening and reading, they are the first step. Then the speaking and the writing, they are secondary things. Okay, first we acquire these two skills, listening and reading. क्योंकि इनमें क्या होता है, एक कंटेंट होता है, ठीक है. कंटेंट, there is a content, you have to just comprehend it and you just have to master it in listening and in reading, both. ठीक है. रीडिंग में आपके पास कंटेंट है, बुक है, आप उससे जो है एक्सप्रेशंस ले सकते हैं, उससे मटेरियल ले सकते हैं, वोकेबलरी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. यू जस्ट हैव टू मास्टर इट.
ठीक है, उसमें आपने उस कंटेंट को कम्प्रीहेंड करने की कोशिश करनी है। और लिसनिंग के अंदर भी क्या होता है कि देयर इज़ कंटेंट इज़ देयर, कोई आपसे बोल रहा है, कोई आपके सामने जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है, आपने जस्ट उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, उसको लर्न करना है। आपने देखना है कि कैसे जो है बात को जो है स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे उसको जुमले की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ना तमाम वर्ड्स का आपस में। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है ये दोनों फर्स्ट स्टेप होते हैं, ये फर्स्ट जो है ये प्राइमरी स्किल्स होती हैं। और जो लिसनिंग है ये टाइड अप है स्पीकिंग से, या यूँ कह लें कि स्पीकिंग या स्पोकन जो है वो जो सेकेंडरी एक स्किल है वो बेस करती है लिसनिंग के ऊपर। आपने देखा होगा ना जो लोग बाय बर्थ वो डेफ होते हैं, दे कैन नॉट स्पीक ईदर, वो बोल भी नहीं सकते। वाई इज़ दैट? लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ कि बोलने के लिए पहले आपको सुनना पड़ता है, राइट? जब आप सुनेंगे किसी को तो आपको पता चलेगा कैसे चीज़ों को वर्बलाइज करना है। सो इफ़ यू आर नॉट familiar with listening, then you are not able to say any word. So since birth जो लोग deaf होते हैं वो dumb भी होते हैं, वो चीज़ों को वर्बलाइज नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इससे हमें पता चलता है ना कि लिसनिंग जो है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये प्राइमरी स्किल है। अगर आपने अपनी स्पोकन को बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, यू हैव टू इम्प्रूव फर्स्ट योर लिसनिंग, ठीक है ना। और लिसनिंग में क्या होता है, कंटेंट आपके पास है, आपने जस्ट उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। उसके बाद स्पीकिंग के अंदर क्या होता है, आपने उसको, उसमें क्रिएशन होती है, उसमें इन्वेंशन होती है। उसमें ये नहीं है कि आपके पास कंटेंट मौजूद है, आपने जस्ट उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, उसमें क्रिएट करना है। आप अपनी उसमें इंसाइट्स उसके अंदर लेके आते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ चीज़ पुट करते हैं उसके अंदर। सिमिलरली रीडिंग जो है वो बेसिक स्किल है और उसके ऊपर बेस करती है राइटिंग। राइटिंग को आप रीडिंग के साथ अटैच कर लो कि आपके पास जब आप इनफ और सफिशेंट रीडिंग आपकी होगी, आपकी कॉम्प्रीहेंशन बन जाएगी, आपके अंदर एक मास्टरी आ जाएगी कि चीज़ों को कैसे जो है वो पुट करना है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, और कौन से प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो उसके बाद आपके अंदर राइटिंग की स्किल पैदा हो सकती है। ऑल्दो कि आपको राइटिंग के लिए एक इंडिपेंडेंट आपको उसके लिए स्ट्रगल एफर्ट करने की ज़रूरत होगी राइटिंग के लिए, इसी तरह स्पीकिंग के लिए भी, बट it initially it based on the other thing, on the primary skill which is listening and reading.